Moving on to the Landsmaker's equation. Last time we derived in the earlier video 1 upon V minus 1 upon U, that is equal to N2 minus N1 divided by N1 in bracket 1 upon R1 minus 1 upon R2. From this equation we are going to derive the Landsmaker equations, and for that what we are doing, if your object is at infinite, means object distance is infinity, so in that case where the image will be formed, अगर रेज आपकी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही हैं तो इमेज ऑब्वियसली कहाँ फॉर्म होती है, तो फोकस पॉइंट पे फॉर्म होती है, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने वाली रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट पे ही मिलती है. सो इमेज डिस्टेंस इज f. Substitute that. U is equal to infinite and V is equal to f. So you will come to this expression. So 1 upon infinity, we know anything divided by infinite gives us 0. So what is left? 1 upon f is equal to n2 minus n1 divided by n1 1 upon r1 1 minus 1 upon r2. अगर इस एक्सप्रेशन को हम आगे लिखना चाहें तो डिवाइड ऑन राइट हैंड साइड बाय n1 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, n2 by n1 is divided by n1 gives you 1. You know this n2 by n1 is nothing but relative refractive index of medium number 2 with respect to medium number 1. Okay, so we'll have the expression in the relative refractive index. Now if we compare this equation with the equation 1 upon V minus 1 upon U, N2 minus N1 by N1 and so on, so with the comparison what you will get is this 1 upon V minus 1 upon U, that is equal to 1 upon F. Okay, so we have a relation between image distance, object distance and focal length. Okay, this equation is valid for the both, whether it is a concave or convex lens. If your image is real or virtual, in both cases this equation is valid. Okay, here in this lens, in case of lens we have a two focal point, in mirror we have a single focal point. Here on the side of source the focal point is called first focal point and rest is called second focal point. Okay, so we have a two focus point, one on the side of source and on the other side of source. So compared to this mirror we have a two focus point. Be careful here. Here if we want to form an image of object due to lens, then you have to consider the following figure. अब ये लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होती है वो समझने के लिए हम तीन रे लेंगे. जो रे पैरेलल है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगा, सेकेंड फोकस पॉइंट में से पास होगा. एक रे ये हुआ. दूसरा रे की बात करेंगे तो ये रे इंसिडेंट ऑन दी ऑप्टिकल सेंटर. अगर ऑप्टिकल सेंटर पे जो रो इंसिडेंट होता है वो नॉर्मली ही होता है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो सीधा जाता है विदाउट गेटिंग रिफ्रैक्टेड. और तीसरा रे जो फर्स्ट फोकस पॉइंट में से पास होता है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाता है. तो यू कैन सी विद दिस थ्री रेज हाउ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी इज फॉर्म्ड एज ए डैश बी डैश. ये कैसे इमेज फॉर्म होती है इसके लिए हमें ये रे लेने हैं और किसका पाथ कैसे रिफ्रैक्ट होगा वो पता है. जो पैरेलल है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद सेकंड फोकस पॉइंट में से पास होगा. जो ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होता है विदाउट गेटिंग रिफ्रैक्टेड इट गो स्ट्रेट, और जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है वो रे पैरेलल हो जाती है. You know very well
the object is emitting so many waves, so many rays, but here we need to consider only 3 rays to get the image of the object. Sometime the 2 rays will do. कई बार आप 2 रे के साथ भी इमेज फॉर्म कर सकते हो. अब मैग्निफिकेशन का लेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा? इज सिंपली एज यूजुअल, it is ratio of image distance to the object distance, means image height to the object height. अगर इमेज आपकी उल्टी है, इन्वर्टेड है, तो ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा. अगर इमेज आपका सीधा है, इरेक्ट है, तो ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा. नाउ लुक एट वन illustration. A magician during the show makes a glass lens with refractive index 1.47. Now this lens disappear through the liquid. अगर ये लेंस को आप लिक्विड में डालते हो तो दिखाई नहीं दे रहा है. What is the refractive index of the liquid? तो जो लिक्विड में डाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? क्या ये लिक्विड वाटर है? Could liquid be a water? इसका आंसर देने के लिए कब आपको वो लेंस दिखाई नहीं देगा? तो उसके लिए कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है? कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का मटेरियल का है उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का होना चाहिए. इट मीन्स n1 is equal to n2. If you substitute n1 is equal to n2, then right hand side would be 0. It means 1 upon f is 0. अगर 1 upon f 0 है तो f कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट. किसका इनफाइनाइट होता है फोकल लेंथ, जरा ये बताइए. तो नॉर्मल ग्लास प्लेट, प्लेन ग्लास प्लेट, अगर आपकी ग्लास प्लेट प्लेन है तो उसका रिफ्रैक्ट जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट हो जाता है. ओके, तो हियर द लेंस विल नॉट बी सीन बिकॉज योर लेंस बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास प्लेट, बिकॉज इसका फोकल लेंथ कितना हो जाता है? इनफाइनाइट. अब जो हमने लिक्विड के बारे में जानना है उसकी बात करते हैं. तो ये वही लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है, जितना कि ग्लास मटेरियल का है. तो वाटर का तो आप जानते हो कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33. And here glass material is having refractive index 1.47. So here the liquid we are talking about, it is not at all a water, but it is glycerin. Glycerin is having refractive index 1.47.